بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، بہت ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، جیسا کہ کتاب المسائل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296 تحتاوی صفحہ نمبر 193 پہ آپ ان مسائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ حافظ نہیں ہیں یا پھر قرآن کی جو آخر کی صورتیں ہیں، پارے عام وغیرہ ہے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ قرآن لے لیجئے ہاتھ میں، تاکہ میں جو سمجھاؤں گا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، آپ سمجھ پائیں۔ ورنہ اگر بغیر آپ حفظ کیے بھی ایسے سمجھ پائیں گے، چند صورتیں یاد ہیں تب بھی کافی ہے، میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض نمازیں، ان کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت اور دوسری رکعت، فرض نمازوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اور کوئی بھی سورہ ملانا، کچھ آیتوں کا پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر 3 رکعت والی فرض نماز ہے تو تیسری رکعت میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملانا ہے۔ اگر فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے، وتر نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، یا کوئی بھی نماز فرض کے علاوہ کسی بھی طرح کی نماز ہو، نفل نماز جو بھی ہو، ہر رکعت میں، چاہے پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت کا ملانا، کوئی سورہ پڑھنا یا چند آیتوں کا پڑھنا، 3-4 آیتوں کا پڑھنا، کم سے کم 3 آیتوں کا پڑھنا، یہ سب ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو الٹا مت پڑھیے گا نماز میں۔ وہ کیسے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جیسے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس کو سمجھیے گا، بہت اہم ہے، میں بالکل سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی، تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ قرآن میں آخر میں کھولیے گا، اس میں دیکھیے گا، یہ اس میں لکھا رہتا ہے ترتیب۔ دیکھیے گا، قرآن آپ کے گھر میں اگر ہو، کھول کے دیکھیے گا، اس طرح لکھا رہتا ہے۔ اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اسی طرح آخر میں بھی لکھا رہتا ہے کہ 114 سورتیں ہیں قرآن میں، آخری سورت جو ہے سورہ ناس ہے، اس سے پہلے جو ہے سورہ فلق ہے۔ تو اس طرح کر کے پوری ترتیب سے کس کے بعد کون سی سورہ ہے قرآن میں لکھا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، غلط فہمی آپ کو نہ ہو، جو پارے عم ہے الگ سے رہتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، صرف پارے عم، اماں پارا جسے کہتے ہیں، اس میں جو ہے ترتیب جو ہے وہ الگ ہے، پہلے سورہ ناس ہے، پھر سورہ فلق ہے، اس طرح الٹا ہے۔ وہ بچوں کے پڑھنے کے لیے، آسانی کے لیے اس کو اس طرح لکھا گیا ہے، اس کو الٹا کر دیا گیا ہے، ورنہ جو اصل قرآن ہوتا ہے اس میں جو ترتیب ہے وہی صحیح ہے۔ سب سے آخری جو سورہ ہے قرآن کی وہ سورہ ناس ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو الٹا پڑھنا کیسے؟ جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھی۔ سورہ نصر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، یہ جو سورہ ہے، سورہ نصر آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ اب آپ جو ہے دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو پلٹ دیتے ہیں، اس سے پہلے والی سورہ، میں کیسے بتاتا ہوں ذرا سمجھیے، میں نکال کر آپ کو دکھا کے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے اذا جاء ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر ہے اذا جاء سورہ ہے، آپ نے پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھی ہے۔ اب دوسری رکعت میں یا اس کے بعد والی تیسری، چوتھی، کوئی بھی رکعت ہو، اس کے بعد والی رکعتوں میں آپ اس سورہ سے پہلے والی سورہ جو ہے، چاہے وہ مطلب فوراً پہلے ہو، جیسے آپ قل یا ایھا الکافرون ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، یا اس سے پہلے کوئی بھی سورہ ہے پورے قرآن میں، آپ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ سورہ والعصر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے مطلب الٹا کر دیتے ہیں۔ جو سورت آپ پڑھے ہیں اس سے پہلے والی سورتوں میں، چاہے وہ کتنی بھی مطلب ایک بھی پہلے ہو یا اس سے 2-4 سورت سے پہلے ہو، جو بھی ہو، اس سے پہلے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ ترتیب کے خلاف ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے پڑھنا۔ نماز ہو جائے گی لیکن سخت مکروہ ہے۔ اگر ہاں غلطی سے ہو گئی، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے، یا غلطی سے کوئی سورہ پڑھنا چاہتے تھے، اس کو جو ہے آپ غلطی سے کچھ دوسری سورہ پڑھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر الٹا اگر پڑھیں گے قرآن کو تو پھر مکروہ ہے۔ اور تیسری بات،
एक सूरत छोड़ कर न पढ़ें, इसमें भी तफसील है, वो भी तफसील आपको बता देता हूँ, समझिएगा। एक सूरत छोड़ के पढ़ना कैसे? मिसाल के तौर पे आपने जो है पहली रकात में इदा जा, इस सूरत को आपने पढ़ी, सूरे नस्र को, ठीक है, पहली रकात में आपने इसको पढ़ी। अब उसके बाद वाली जो आयत थी, जो सूरत थी, जो सूरा उसके बाद में है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, आपने इस सूरत को नहीं पढ़ी, उसके बाद वाली सूरत को छोड़ दी, एक सूरा आपने बीच में छोड़ा। उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, देखिए उसके बाद यहाँ पर है कुल हुवल्लाहु अहद, आपने इस सूरत को पढ़ी है, बीच में एक सूरा आपने, सिर्फ एक सूरा जो है आपने छोड़ दिया है। ये मकरूह तंजीही है, नापसंदीदा है, इस तरह नमाज में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई पढ़ लेता है नमाज तो हो जाएगी, अगर गलती से पढ़ा है तो फिर कोई मकरूह भी नहीं है। जानबूझकर अगर एक सूरा छोड़ के पढ़ता है तो फिर मकरूह है। अगर एक से ज़्यादा सूरा छोड़ देता है, 2 सूरा छोड़ दिया, 3 सूरा छोड़ दिया, या कई सारी सूरतें उस जो है छोड़ देता है, जैसे मिसाल के तौर पे इदा जा है, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर इदा जा, उस सूरत को पढ़ा, अब तब्बत यदा भी छोड़ दिया उसके बाद वाली सूरा, फिर उसके बाद वाली सूरा कुल हुवल्लाहु अहद भी छोड़ दिया, 2 सूरा बीच में छोड़ दिया, अब उसके बाद फिर से पढ़ रहा है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बीच में 2 सूरा छोड़ के पढ़ता है, कोई बात नहीं, बिला कराहत जायज़ है। यानी ये कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक सूरा छोड़ देना बीच में ये मकरूह है। अगर एक से ज़्यादा सूरत आप बीच में छोड़ देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बेहतर की जहाँ तक बात है, बेहतर है कि मुसलसल पढ़ें, ये बेहतर है ताकि मजमून जो है वो सही तरीके से चल सके। और इसी मसले में एक और मसला, अगर आप मिसाल के तौर पे इसको समझिए, जैसे सूरे वल असर है, ठीक है, वल असर, इस सूरत को, सूरे असर को पहली रकात में आप पढ़ते हैं, उसके बाद वाली जो सूरा है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, इस सूरत को जो है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ इसलिए मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे क़िराअत नहीं करता हूँ, इसलिए सही से समझिएगा इसको। तो इस सूरत को आप नहीं पढ़ते हैं, एक सूरा यहाँ छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप अलम तरा पढ़ते हैं। यहीं पर आपको समझना है, बहुत बारीकी के साथ आपको बताता हूँ। इस मसले को समझने से पहले एक चीज़ और समझिएगा, नमाज में पहली रकात के मुकाबले में दूसरी रकात को या तीसरी रकात को या चौथी रकात को तवील करना, लंबी क़िराअत करना, कम से कम 3 आयतों से ज़्यादा पढ़ देना, ये मकरूह है, ठीक है। यानी अगर आप, जैसे आपने वल असर पढ़ी है पहली रकात में, इसमें कितनी आयतें हैं? 3 आयतें, और आयतों में जो हिसाब है वो असल में यहाँ आयतों के एतबार से मैं आपको आसानी के लिए बताता हूँ, वरना फिर हुरूफ के भी हिसाब किए जाते हैं, ये एक अलग मसला है, आप इतना नहीं समझ पाएंगे इसलिए छोड़ता हूँ इसको। तो सूरे वल असर में 3 आयतें हैं, आपने पहली रकात में इस आयत को पढ़ी है, इस सूरत को पढ़ी है, 3 आयतें हैं। उसके बाद वाली जो सूरत है, अगर वो उससे 3 आयत बड़ी सूरा है, ठीक है, या बाद वाली हो या कहीं पर भी हो, अगर इससे लंबी सूरा है, और लंबी में कितनी लंबी होनी चाहिए? कम से कम 3 आयत। अगर 3 आयत से कम है, पहली रकात में आपने जितनी आयतें पढ़ी थी, मिसाल के तौर पे आपने 3 आयतें पढ़ी थी, दूसरी रकात में आप 5 आयत पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल जायज़ है। 6 आयत पढ़ लेते हैं तब भी गुंजाइश है। 4 आयत पढ़ते हैं यानी दूसरी रकात को लंबी कर देते हैं, जायज़ है। लेकिन जब 3 आयत से ज़्यादा लंबी कर देंगे, दूसरी रकात या तीसरी रकात पहली रकात के मुकाबले में उससे लंबी हो जाए, वो 3 आयत लंबी हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसीलिए लंबी मत करिएगा। अब इसकी वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको समझिए। आपने पहली रकात में सूरे वल असर पढ़ी है, ठीक है, इसमें 3 आयतें हैं। अब इसके बाद वाली जो सूरत है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, ये सूरा जो है अगर आप देखते हैं तो 9 आयतें हैं, ठीक है, ये देखिए 9 आयतें हैं इसमें, कुल 9 आयतें। अगर आप इस सूरत को पढ़ते हैं बाद वाली रकात में, पहली रकात में वल असर, दूसरी रकात में आप वैलुल लिकुल्ली पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। क्यों? पहली रकात में 3 आयतें थी, दूसरी रकात उससे 3 आयत से भी ज़्यादा लंबी हो गई। हाँ, 4 आयत, 5 आयत, 6 आयत भी हो जाती तब भी चल जाती, कोई बात नहीं। लेकिन जब
पहली रकात के मुकाबले में दूसरी रकात 3 आयत लंबी हो जाए तब मकरूह है। और यहाँ पर 3 आयत थी, यहाँ पर 9 आयतें हैं, तो इस सूरत में 6 आयतें और ज़्यादा हो गई, इसीलिए नमाज मकरूह हो जाएगी। अब ऐसी सूरत में आपके लिए वल असर पढ़ने के बाद जो उसकी बाद वाली सूरत है, सूरह वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, आपके समझाने के लिए, आसानी के लिए बताता हूं मैं। अब इस एक सूरत को आप छोड़ देते हैं, उसके बाद वाली जो सूरत है अलम तरा कैफ़ फ़अला, इस सूरत को सूरह फील जिसे कहते हैं, आप इस सूरत को पढ़ लेते हैं और ये 5 आयतें हैं। तो जब 3 आयतें पहली रकात में थी, ये 5 आयतें हैं, और ये दूसरी रकात वाली जो आयतें हैं अलम तरा की जो है सूरह फील की, ये 3 आयत से कम है, फिर आपके लिए पढ़ना जायज़ हो गया। एक सूरह आप बीच में छोड़ रहे हैं, देखिए एक सूरत बीच में छोड़ के पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी नमाज मकरूह नहीं होगी। मैं ये बताना चाहता हूं, एक बीच में एक सूरत को छोड़ना उस वक्त मकरूह है जब दूसरी वाली, उसके बाद वाली सूरत जो है वो उससे 3 आयत कम से कम जो है छोटी है, या 3 आयत बड़ी है। अगर उससे ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मुसलसल, यानी अगर आप उसको पढ़ते हैं तो और लंबी सूरा हो जाती है दूसरी रकात में, इसीलिए आप वहाँ पर एक सूरा भी बीच में छोड़ सकते हैं, और एक सूरत उस वक्त छोड़ना आपके लिए मकरूह भी नहीं होगा। ठीक है, ये मसला बहुत ज़रूरी था कुरान के बारे में। आप नमाज, क्यों नमाज बहुत ज़रूरी इबादत है, नमाज का सवाल आखिरत में सबसे पहले होगा, सबसे पहले जो है आप नमाज दुरुस्त करें। इसीलिए ये ज़रूरी मसाइल आप तक मैंने पहुँचाया है, आपकी ज़िम्मेदारी है दूसरों तक भी पहुँचाएँ, समझाएँ, न समझ सकें फिर उलमा से राब्ता करें, उलमा से पूछें। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।